अंत। शतावट का चरम। रण क्षेत्र में योद्धाओं, यीशु मसीहा आ रहा है। क्या आप तैयार हैं? अंतिम समय के लिए तैयार हो जाओ। A special welcome to all Angel TV viewers who are watching this program. इस कार्यक्रम को देखने वाले सारे एंजल टीवी के दर्शकों के लिए खास स्वागतम। This program is called Prepared to Meet the End Times. ये कार्यक्रम अंतिम समय की तैयार कार्यक्रम है। Its purpose is to make us all aware and to prepare for the end times. इसकी उद्देश्य ये है कि हम सब के लिए अंतिम समय के बारे में जानकारी दें और तैयार करें। The title of today's message is called In the Beginning There Was Darkness. आज के संदेश की शीर्षक ये है कि आदि में अंधकार था। In the beginning there was darkness on the face of the deep. आदि में संसार की गहराई में अंधकार को देखते हैं। And God divided the light from darkness. God called the light day and the darkness he called night. परमेश्वर ने ज्योति को अंधकार से अलग किए और ज्योति को उन्होंने दिन कहा और अंधकार को रात कहा। Darkness always follows light. अंधकार हर वक्त ज्योति का पीछा करता है। After daylight comes night. दिन की ज्योति के बाद रात अंधेरा आता है। Jesus said, one day he will put away all darkness and one day he will be our light forever. प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक दिन सारे अंधकार को दूर करेंगे और वो हमारे लिए अनंत ज्योति बनेंगे। Let us turn to the book of Revelation chapter 22 and read verse 5. आइए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 22 अध्याय उसके 5वें पद को पढ़ें। There shall be no night there. They need no lamp nor light of the sun, for the Lord God himself give light, and they shall reign forever and ever. और फिर ना रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य की उजियाले का प्रयोजन ना होगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वह युगानुयुग राज्य करेंगे। This is part of our destiny, to be in the light that God gives forever, where darkness no longer exists. हमारे लक्ष्य का भाग ये भी है कि हम परमेश्वर के दिए जाने वाली इस अनंत ज्योति में रहें जहाँ पर कोई अंधकार नहीं है। Let us turn to the book of 1 Thessalonians chapter 5 and read verse 5. आइए पहला थिस्सलुनीकी की पत्री उसके 5वें अध्याय उसके 5वें वचन को हम पढ़ेंगे। You are all sons of light and sons of the day. We are not of the night nor of darkness. क्योंकि तुम सब ज्योतियों की संतान और दिन की संतान हो, हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। Let us also turn to the book of 2 Timothy chapter 1 and read verse 10. आम जय दूसरा तिमुथियुस की पत्री उसकी पहला अध्याय 10वें पद को भी पढ़ें। But has now been revealed by the appearing of our Savior Jesus Christ, who has abolished death and brought life and immortality to light through the gospel. पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाश हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। So knowing these things that we should be the light, why do we permit some part of darkness to exist in our soul and in our nature? जबकि ये जानते हुए कि हमें ज्योति बनना है, तो क्यों हम अपने प्राण में अंधकार के कुछ भागों को अनुमति देते हैं? The answer is simple. उसके उत्तर बहुत ही सरल है। It is because we have not reached the point where our spirit, which is so filled by the God's Holy Spirit, to dominate our daily lives. क्योंकि हम वहाँ तक अभी नहीं पहुँचे हैं जहाँ हम अपने आत्मा में अनुमति देते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर वो अनंत ज्योति को ले आए और वास करने पाए। Part of our purpose in life is to be an influence for good for those living in darkness. हमारे जीवन के उद्देश्य के भाग ये है कि हम जो लोग अंधकार में जी रहे हैं उनके लिए ज्योति बन के जीने पाएं। An influence to shine the light of God in their lives. और हम एक ज्योति की प्रभाव बनने पाएं ताकि उनके जीवन में ज्योति चमक सके।
Have you taken hold of this directive from God? क्या परमेश्वर की ओर के निर्देश को आप अपने जीवन में थाम लिए हैं, पकड़ लिए हैं? Let us turn to the Gospel of Luke chapter 1 and read verse 78 and 79. आज जो लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय के 78 और 79 पद को हम पढ़ेंगे। Through the tender mercies of our God, with which the day spring from on high has visited us, to give light to those who sit in darkness and the shadow of death, to guide our feet into the way of peace. यह हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा, कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पांवों को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। You and I are called to give light to those who are in darkness. हम और आप जो अंधकार में रहते हैं उनके लिए ज्योति चमकने के लिए ही बुलाए गए हैं। We are also being encouraged to pray in the Spirit every day. और हमें प्रोत्साहित किया गया है कि हर रोज हम अपने आत्मा में प्रार्थना करें। The Holy Spirit is our helper to show us what form of darkness still lies deep within our soul and to deal with its removal. पवित्र आत्मा हमारे अंदर से मदद करते हैं ताकि ये समझने के लिए हमारे प्राण में लगी हुई अंधकार की बातें क्या है, कैसे उसके साथ वर्ताव करें, उसे दूर करने के लिए। Let's turn to the book of Ephesians chapter 4 and read verse 30 to 32. आज जो है इफिसियों की पत्री 4 अध्याय के 30 से लेके 32वें पद तक पढ़ें। Do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you with all malice, and be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब वैरभाव समेत तुमसे दूर किए जाए, और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। The enemy tests our capacity of how much we have Christ living in us. शत्रु हमारे जीवन में कितना क्षमता है कि मसीह हमारे अंदर जी रहे हैं करके जानने के लिए। The enemy knows that we can destroy them by the power of the Holy Spirit, and they are watching us. शत्रु जानता है कि उन्हें हम परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ के द्वारा नाश कर सकते हैं, इसलिए वो हम पर ध्यान लगाए रखते हैं। Do you believe that you have the power of the Holy Spirit to destroy all forms of darkness in us? क्या आप विश्वास करते हैं आपके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ है कि अंधकार की हर एक बातों को आप नाश कर सकते हैं? The enemy which we cannot see try to influence us every day in our way of life to make wrong decisions. हमारे जीवन के शत्रु जिसे हम देख नहीं सकते हैं कि हर वक्त हमारे जीवन में प्रभाव देता रहता है कि किसी भी तरीके से हम गलत निर्णय ले नहीं पाए अपने जीवन में। Any form of darkness that is still in us needs to be removed or we will make the wrong decision. किसी भी प्रकार के अंधकार जो हमारे अंदर है उसे दूर करना जरूरी है, नहीं तो हम गलत निर्णय ले सकते हैं अपने जीवन के लिए। Let's turn to the book of James chapter 4 and read verse 7 to 8. आयम जो याकूब की पत्री उसके 4 अध्याय 7 से लेकर 8 पद तक हम पढ़ेंगे। Therefore submit to God, resist the devil and he will flee from you. Draw near to God and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुष्चित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। Are we prepared to engage in any battle to destroy all forms of darkness? क्या हम तैयार हैं कि किसी भी प्रकार के अंधकार के कार्य को नाश करने वाले युद्ध में शामिल होने के लिए?
Or do we choose to fight the battles that are easy and let go of the hard ones? या हम जो आसान युद्ध है लड़ने के लिए उसे चुनते हैं और कठिन युद्धों को छोड़ देते हैं। The nature of man is to battle the easy ones first and leave the hard ones later. मनुष्य के स्वभाव ऐसा है कि पहला आसान युद्धों को लड़ता है, कठिन युद्धों को बाकी के समय के लिए रख देता है। But God is speaking to us today, and He is encouraging us to battle the hard ones first. Then the easy ones will be easy. मगर परमेश्वर की आत्मा हमसे बात कर रहे हैं कि ये कहते हुए कि हम पहला जो है कठिन युद्धों को लड़ें और बाद में आसान युद्धों को। Let's turn to the book of Amos chapter 7 and read verse 7 to 8. आमोस आमोस की पुस्तक 7वें अध्याय उसके 7 से लेकर 8वें पद तक पढ़ेंगे। Thus he showed me, behold, the Lord stood on a wall made with a plumb line, with a plumb line in his hand, and the Lord said to me, Amos, what do you see? And I said, a plumb line. Then the Lord said, behold, I am setting a plumb line in the midst of my people Israel. I will not pass by them anymore. उसने मुझे यह भी दिखाया, मैंने देखा कि प्रभु साहुल लगाकर बनाई हुई किसी भीत पर खड़ा है और उसके हाथ में साहुल है। और यहोवा ने मुझसे कहा, हे आमोस, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, एक साहुल। तब परमेश्वर ने कहा, देख, मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बीच में साहुल लगाऊंगा। God is dealing with all of us today, and He wants us to get rid of all forms of darkness. परमेश्वर हम सबसे आज बर्ताव कर रहे हैं कि और चाहते हैं कि हम हर एक प्रकार के अंधकार से अपने जीवन में से हम छुटकारा पाएं। Many churches worldwide have fallen prey to the lying spirit, deceiving spirit, and therefore wrong teachings have crept into the church. बहुत सारे लोग हम में से झूठे और धोखा देने वाले आत्मा के द्वारा प्रार्थना करते होंगे, इस वजह से ही झूठी शिक्षाएं कलीसिया में फैलने लग गया है। The standards from the early church mentioned in the book of Acts are almost not existent in our modern church. प्राचीन काल के कलीसियाओं के बारे में जो प्रेरितों काम के पुस्तक में देखते हैं, वैसे स्वभाव इन दिनों के कलीसियाओं में से पूर्ण तरीके से मिट चुका है। There is a form of darkness that is creeping into our churches today. इन दिनों में एक प्रकार के अंधकार हर एक कलीसियाओं में घुसता जा रहा है। Let us consider the same-sex marriage that is creeping into our churches today. इन दिनों के कलीसिया में स्वयं लैंगिक के विवाह के बारे में जरा सोच के देखें। This standard is not from the light, it is from the darkness. ये स्तर ज्योति की ओर से नहीं है मगर अंधकार की ओर से है। It is breaking all the principles that we are reading in the scriptures. वचनों में हम पढ़ने वाले हर एक सिद्धांतों को ये तोड़ता जा रहा है। Let us turn to the book of 2 Timothy chapter 3 and read verse 1 to 7. हम दूसरा तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय 1 से लेकर 7 पद तक पढ़ेंगे। But know this, that in the last days perilous times will come, for men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasures rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power. From such people turn away, for this is the sort are they that creep into the households and make captives of gullible women loaded with sins, led away by various lusts, always learning and never able to come to the knowledge of the truth. पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, ढींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति ना मानेंगे। ऐसे से परे रहना। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और छिछोरे स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर
प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं और सदा सीखती तो रहती हैं, पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। As Christians living in our generation, we are being confronted strongly in the family unit every day. हम मसीह इस पीढ़ी में रहने वाले लोग हर रोज हमारे परिवार में कई चीजों का सामना करते हैं। What are we doing about it? उन चीजों के बारे में हम क्या करते हैं? Are we asking the Holy Spirit to help us to remove all forms of darkness in the family unit? क्या हम अपने परिवार में से उस प्रकार के अंधकार को संपूर्ण रीति से दूर करने के लिए पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं? Here are some examples of darkness that exists in the family unit. ये कुछ उदाहरण हैं जो अंधकार जो परिवारों के बीच में, मसीह परिवारों के बीच में वास करता है। Not just physical abuse, but verbal abuse in married couples. विवाहित दंपतियों के बीच में सिर्फ शारीरिक शोषण ही नहीं, मगर शब्दों की शोषण भी किया जा रहा है। Our children are encouraged to have sexual relationship outside marriage. हमारे बच्चों को प्रोत्साहन किया जा रहा है शादी के पहले या शादी के बाहर ही यौन संबंध रखने पाएं। Our TV shows and movies are so corrupt and defiling in the spirit that many fall into sorts of sin. हमारे टीवी के कार्यक्रम और मूवियाँ बहुत से लोगों को ऐसे भ्रष्ट कर दिया अपने आत्मा में कि बहुत से पाप में गिर जाते हैं। All sorts of drugs are available to dull the mind and senses, such as sleeping pills and many depression pills. अब बहुत सारे नशीले पदार्थ आज लोगों के लिए उपलब्ध है, जैसे कि नींद की गोलियां या तनाव की गोलियां। The question is, are we able to withstand all these attacks and overcome from falling into deep darkness? सवाल ये है कि इन सारे हमलों के लिए हम विरोध खड़े हो पाते हैं और अंधकार से हम जयवंत हो पाते हैं। My dear brothers and sisters, I want to encourage you today. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। If you have fallen prey to the ways of this world, अगर आप इस संसार के मार्गों में भटक चुके हैं, उसके लिए घिर चुके हो, remove that form of darkness away from you. आप में से इस प्रकार के अंधकार को दूर करिए, Especially if it affects your family. खास रीति से अगर आपके परिवार पर यह प्रभावित होता है तो। Do not get caught in gambling nor drinking, जुएबाजी में या शराब में आप फंस ना जाएं, because that form of darkness will destroy your family. क्योंकि इस प्रकार की अंधकार आपके परिवार को नाश कर सकता है। We have come to an end of this message. We will continue this topic once again in the next program. Until then, we want to wish you all the best. God bless you. In Jesus' name, Amen. हम इस सत्र के अंत में आ पहुंचे हैं। इस संदेश को अगले बार हम जारी रखेंगे। अगले बार आपसे मिलते तक परमेश्वर आप सबको आशीष दें। आमीन।